टेक ओके ओके हमारे Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. We have discussed about the infrared spectroscopic techniques already, and today I would like to discuss about the mass spectrometry or mass spectroscopic techniques. Mass spectroscopy or mass spectrometry is used to analyze the atomic mass or molecular atomic mass of an element or molecular mass of a compounds, and it can also be utilized to find the molecular formula for a substance, and similarly for identifying different isomers. Mass spectroscopy is an analytical spectroscopic techniques that can be used for measuring the mass or molecular weight of a molecule. आमतौर पे इससे पहले जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, सच टेक्निक्स उसमें से जो है आप समझते हैं कि इन टेक्निक्स को like UV spectroscopic techniques is used to find out the unsaturation in a molecule. And similarly, IR spectroscopic techniques is used to analyze the functional group present in a molecule. And mass spectroscopic technique is used to find out the molecular mass of a substance and can also be utilized to find out the molecular formula. तो ये एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है इसको फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. These techniques also involve the production of gaseous ions from the substance under investigations and separation according to the mass to charge ratio and the measurement of the relative abundance of these ions. जी बिल्कुल, ये एक ऐसा टेक्निक्स है जिसके प्रिंसिपल ये है कि हम मॉलिक्यूल्स की फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वेपोराइज कर देते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी फ्रेगमेंटेशंस की जाती है और मॉलिक्यूल्स को गैसियस आयन में कन्वर्ट किया जाता है फिर. और इन गैसियस आयंस मॉलिक्यूल्स आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू गैसियस आयंस देन हम इन गैसियस आयन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी इन गैसियस आयंस को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये गैसियस आयंस कौन कौन से हैं. लेकिन we will after fragmentation of a molecules and then converting into gaseous ions, we will have molecular ions having different mass to charge ratio, or in mixture of molecular ions having different mass to charge ratio इनको फिर हम सेपरेट करते हैं. और सेपरेशन के बाद हर मॉलिक्यूल्स जिनके डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो होती है इसको मेजर किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, और फाइंड आउट करने के बाद फिर हम बता सकते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल
कि इन गैसियस आयंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और गैसियस आयंस की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में या मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के बारे में और साथ जो है मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल ये है कि दिस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द gaseous ions from the substance under investigation, and then these gaseous ions are separating from each others on the basis of mass to charge ratio, and then we will be able to identify the substance. This is the principle of mass spectroscopic technique. So before going to describe in details and applications of the atomic mass spectroscopic techniques, so first of all, we must know about the instrumentations. What are the different parts of the device, or of this equipment, this mass spectrometry के different parts क्या है और in different parts का जो है functions क्या है. So we have to describe now the instrumentation of the mass spectroscopic technique, mass spectrometry. So the main component of the mass spectrometry, और इसमें इसका जो पहला वो है, that is sample input system. And the second portion of the mass of this instrument, that is ionization chamber, ionization source, where there we can say them as a ionization chamber. Then we have a third portion of the mass spectrometry, that is mass analyzer. And then we have a detector, and then we have vacuum pumps. So these are the main components, are the main portions of the mass spectrometer. तो इसका पहला जो है नेम शो करता है कि सैंपल इनपुट सिस्टम, जहां पे सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुट किया जाता है. इसके बाद वी हैव आयोनाइजेशन सोर्स. बिफोर द आयोनाइजेशन सोर्स वी हैव अ वेपोराइजेशन चेंबर, जो हम सैंपल जहां पुट करते हैं, इसके बाद जो है सैंपल को वेपोराइज किया जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है. और आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट वी हैव आयोनाइजेशन सोर्स. we undergo the fragmentation of the sample and then change them into the gaseous ions. So after converting the sample into the gaseous ions, so this process can be done in the ionization chamber, ionization source. और इसके बाद जो है हमारे पास आयोनाइजेशन सोर्स के अंदर या आयोनाइजेशन चेंबर्स के अंदर जो वो बन जाते हैं, जो मेरे पास आयोनाइजेशन सोर्स या आयोनाइजेशन चेंबर में जो आयंस बन जाते हैं, इन आयंस की आयन सेपरेटर, इन आयंस को ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो सेपरेट करते हैं. और आयन सेपरेशन के बाद मास एनालाइजर पोर्शन है, और मास एनालाइजर में जो है हम जो मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस को हम एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं. और इसके बाद वी हैव अ पोर्शन दैट इज सेड टू बी एज डिटेक्टर. डिटेक्टर में मास एनालाइजर में जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं, इनको डिटेक्ट किया जाता है. और सम ऑफ द मॉलिक्यूलर आयंस जो कि अनयूज्ड होते हैं, उन मॉलिक्यूलर आयंस के ऊपर हम वैक्यूम पंप्स के थ्रू जो है, जो न्यूट्रल आयंस होते हैं, इनको पिक आउट कर देते हैं वैक्यूम पंप्स के जरिए. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक mass spectrophotometers. So it is a computer based data acquisitions and processing system. मतलब ये कि ये तो different portions of the unit है, लेकिन computer attached system होता है ये mass spectrophotometers. और कंप्यूटर के थ्रू जो है ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है कि डिटेक्टर की तरह अब है. और एट द एंड हमें मास स्पेक्ट्रम मिलता है, और मास स्पेक्ट्रम से फिर हम अपने लिए जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं, अपने लिए मॉलिक्यूल्स के बारे में फिर बता देते हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस कौन कौन से हैं इस सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन में. जी बिल्कुल, ये है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स या मास स्पेक्ट्रोमीटर का एक स्केच है.
generate ions from molecules and measures their mass। जी बिल्कुल, इस इंस्ट्रूमेंट का काम ये है कि मॉलिक्यूल्स जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं इसको वेपोराइज कर देते हैं, फिर इसके मॉलिक्यूलर आयंस बना देते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस की सेपरेशन होती है, मॉलिक्यूलर आयंस की सेपरेशन के बाद मॉलिक्यूलर आयंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, और मॉलिक्यूलर आयंस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम बता सकते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में, छोटे जो मॉलिक्यूल्स है उस बारे में फिर हम बता सकते हैं। ठीक है, सो ये है। और इसको और बल्कि ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी कैन टेक आउट फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम। ये नीचे जो है ये मास स्पेक्ट्रम है, और इस मास स्पेक्ट्रम से हम अपने लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द अननोन सब्सटेंस हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ये एसेंशियल कंपोनेंट सबसे पहले क्या है? सैंपल इनलेट सिस्टम। सबसे पहले है सैंपल इनलेट एंड, तो यहाँ पे हम सैंपल पुट कर देते हैं। इसके बाद पोर्शन आयन सोर्स का है, फिर आयन एक्सेलरेटर है, फिर आयन एनालाइजर है, फिर ये सिग्नल दे देते हैं आयन डिटेक्टर्स है। आयन डिटेक्टर्स के बाद जो है फिर कंप्यूटर डेटाबेस के थ्रू जो है हमें क्या बनता है? मास स्पेक्ट्रम बनता है, और मास स्पेक्ट्रम से फिर हम अपने लिए ये सारे इंफॉर्मेशन अबाउट द अननोन सब्सटेंस हासिल कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये जो डिफरेंट पीक्स हैं, देखिए ये पीक्स हैं, पीक वैल्यू 2, ये 15, ये 27, ये 41, ये डिफरेंट पीक वैल्यूज है, और इन पीक वैल्यू से हम बता सकते हैं अबाउट द अननोन सब्सटेंस के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद नाउ now we have this portion. This is now what this is a sketch of the mass spectrophotometers का एक sketch है। ये वो portion है जिसका sample inlet system, यहाँ पे हम अपना सैंपल पुट करते हैं। ये हीटर कॉइल्स हैं, क्योंकि सैंपल को वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम नॉक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं एटम से, और यही इलेक्ट्रॉन्स को हम बम्बार्ड कर देते हैं। ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटर्स है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है इनको एक्सेलरेट किया जाता है, सैंपल के ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं। यहाँ पे वो भी कहलाता है, ये जो है ना, यहाँ फ्रेगमेंटेशन भी हो रही होती है इस पोजीशंस में। और इसके बाद जो है सैंपल एक्सेलरेटर के बाद जो है यहाँ पे सैंपल, यहाँ से मैग्नेट, ये मैग्नेट है हमारे पास, जो मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं, इन मॉलिक्यूलर आयंस को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से पास करने के बाद जो डिफरेंट आयंस होते हैं, क्योंकि सम ऑफ द मॉलिक्यूलर आयंस आर लाइटर एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूलर आयंस are heavier, so on the basis of mass to charge ratio इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इन मॉलिक्यूलर आयंस को जो है सेपरेट किया जाता है। तो ये देखें X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव, सो दीज आर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस है। तो जाहिर है, तो यहाँ पे मेरे पास इस पोजीशन पे यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में मॉलिक्यूलर आयंस आ जाते हैं, इसमें X प्लस, Z प्लस, Y प्लस सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से पास होने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो इन मॉलिक्यूलर आयंस को सेपरेट आउट किया जाता है, और ये मॉलिक्यूलर आयंस जो है मेरे पास जो है वो सारे सेपरेट हो चुके हैं। Next we have on the basis of mass to charge ratio in molecules को जो है in molecular ions को, these X positive, Y positive, Z positive, actually these are the molecular ions। जो heaviest ions होते हैं वो पिछली साइड पे गिर जाते हैं, और जो हेवीएस्ट होते हैं और जो लाइटर होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसी तरह आयंस जो है सारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। और इन आयंस के बाद डिटेक्टर हैं, डिटेक्टर X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव या Z पॉजिटिव को जो है वो डिटेक्ट कर देते हैं, और इन X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव जो मॉलिक्यूलर कैटायंस है, इन कैटायंस को मिला के हम बता सकते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल्स इन फ्रेगमेंट्स
कैटायन फ्रेगमेंट्स को मिला के हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के बारे में बता सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता सकते हैं। सो ये एक स्केच है एक्चुअल यूनिट का। ये भी एक स्केच है। इसी तरह बार बार हम पढ़ रहे, ये वेपोराइजेशन चेम्बर है। वेपोराइजेशन यानी सैंपल इनलेट, यहाँ से फिर सैंपल को वेपोराइज किया जाता है। आयोनाइजेशन है, वेपोराइज सैंपल को आयोनाइज किया जाता है, जिसको फ्रेगमेंटेशन चेम्बर्स भी कहा जाते हैं। और इन मॉलिक्यूलर आयंस को आगे की तरफ जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं आगे, यहाँ पे एक्सेलरेटर है। मॉलिक्यूलर आयंस को एक्सेलरेशन दी जाती है, इसके जो स्पीड है या एक्सेलरेशन है वो बढ़ा दिया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मॉलिक्यूलर आयंस की वेलोसिटी को बढ़ाने के बाद जो है व्हाट वी हैव, देन वी हैव दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़े होते हैं इनको जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से पास करने के बाद आयंस की डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्टिंग चैम्बर भी कहा जाते हैं। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं इनकी सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पास टू चार्ज रेशो। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो न्यूट्रल आयंस होते हैं उनको वैक्यूम पंप के थ्रू जो है यहाँ से किक आउट किया जाता है। बाकी जो मॉलिक्यूलर आयंस यहाँ पे आ जाते हैं डिटेक्टर चैम्बर में, एम्पलीफायर और डिटेक्टर चैम्बर चार्ट रिकॉर्डर आ जाते हैं। चार्ट रिकॉर्डर से मुराद है कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रम बनती है और इस मास स्पेक्ट्रम से हम फिर डिसाइड कर सकते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल, बता सकते हैं। नेक्स्ट जी बिल्कुल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पोर्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आयोनाइजेशन चेंबर है, जाहिर है इस आयोनाइजेशन चेंबर में क्या होगा, जो मेरे पास वेपोराइज सैंपल है उन वेपोराइज सैंपल की फ्रेगमेंटेशन, इनके फ्रेगमेंट आयंस बनाते हैं और फिर इसकी आयोनाइजेशन की जाती है। ठीक है, सो आयोनाइजेशन चेंबर में द पार्टिकल्स इन द सैंपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विद द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू नॉक वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारे पास जो फ्रेगमेंट होते हैं सैंपल के, देखिए सैंपल की हम सैंपल जो हमारे पास होता है वो लिक्विड में, सॉलिड में या किसी भी स्टेट, जिस स्टेट में भी हो, इनको हम वेपोराइज यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उस मॉलिक्यूल्स की अंडर इन्वेस्टिगेशन जो मॉलिक्यूल है इनकी फ्रेगमेंटेशन की जाती है और इन फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे जो फ्रेगमेंट होते हैं इनको हम पास करते हैं आयोनाइजेशन चेंबर से। आयोनाइजेशन चेंबर्स में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर देते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर देते हैं विद स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब कोलाइड कर देते हैं फ्रेगमेंट्स के साथ तो वहां से मजीद इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देते हैं और एज रिजल्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटायन बन जाता है। सो in the ionization chamber the particles of the in the sample are bombarded with a stream of electrons to knock one or more electrons out of the sample। तो जो हमारे पास सैंपल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के बाद हमारा मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर कैटायन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर कैटायन रेडिकल में सैंपल कन्वर्ट करने टू मेक द पॉजिटिव आयंस। तो मॉलिक्यूलर कैटायन रेडिकल्स जो है वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करने से क्या होगा, पॉजिटिव आयंस बन जाएगी। सो ये स्केच में आपको नजर आए, वेपोराइज सैंपल यहाँ फीड किया जाता है और यहाँ पे ये हीटिंग कॉइल्स हैं, ये क्या करते हैं, मेटल कॉइल है, क्या करते हैं कि ये हीट भी दे देते हैं, मॉलिक्यूल्स को फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। और साथ ये मेटल है, मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव होते हैं। तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी और वो इलेक्ट्रॉन सैंपल के साथ कोलाइड करके सैंपल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते हैं। तो सैंपल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के बाद सैंपल हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हमारा सैंपल कन्वर्ट होता है उसमें पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, जिसको आई वुड लाइक टू, जी बिल्कुल ये देखें यहाँ से मेरे पास आयंस, फ्रेगमेंट आयंस आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करने से फ्रेगमेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम उस फ्रेगमेंट्स के साथ कोलाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रेगमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को मजीद इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे तो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव कैटायन बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कैटायंस रेडिकल जो है वो पॉजिटिव आयंस जो है वो बन जाएगी।
और इन पॉजिटिव आयंस को आगे सेपरेटिंग चेंबर की तरफ हम ले जाते हैं और फिर डिटेक्टर की तरफ. So most of the positive ion forms will carry a charge of +1. ज्यादातर some of the positive ions have +2 or +3 charge, लेकिन ज्यादातर जो ions होते हैं उसके ऊपर +1 चार्ज होता है. नेक्स्ट एक्सेलरेशन चेंबर में जो मेरे पास पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं उसको एक्सेलरेशन दी जाती है, उसका स्पीड बढ़ा दिया जाता है और इनको फिर एक्सेलरेट करने के बाद उनको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं. ठीक है. सो द आयंस आर एक्सेलरेटेड सो दैट they all have the same kinetic energy. यानी जो मॉलिक्यूल्स है सेम एक्सेलरेशन या सेम काइनेटिक एनर्जी आयंस को दिया जाता है, तो सेम काइनेटिक एनर्जी आयंस को प्रोवाइड कर देते हैं. तो सेम एनर्जी से अब अगर हम तो सेम फोर्स या सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें, अब द मॉलिक्यूल्स द आयंस दैट आर हेवियर and on providing the same kinetic energy will travel less distance, while the molecules that uh, on providing the same kinetic energy and lighter ions will be far away. ठीक है. सो जिन मॉलिक्यूल्स को जो आयंस हेवियर होते हैं और हमको देखे हेवियर केटाइन हो लाइटर केटाइंस हो, वी आर प्रोवाइडिंग सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब आपके पास एक मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक स्टोन है जो जिसका वेट ज्यादा है और आके एक फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं और इसको आप आगे की तरफ जो है फेंक देते हैं, और दूसरा आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे स्टोन को जिसका मास छोटा है, तो क्या होगा, सेम फोर्स प्रोवाइड कर देने से वो मास जो है जिसका लाइटर मास है वो आगे की तरफ जो है आप ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो सेम इज द केस हियर विद कि जब हम एक्सेलरेटिंग चेंबर से आयंस केटायंस को पास कर देते हैं तो हम तो सेम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर केटायंस हेवियर होते हैं वो एक जगह पे गिर पड़ जाएंगे और जो मॉलिक्यूल्स लाइटर होते हैं वो दूसरे पोजीशन पे गिर पड़ जाएंगे, और एज ए रिजल्ट जो है जो मेरे पास डिफरेंट कैटायंस होते हैं हैविंग डिफरेंट मासेस वो अलग अलग हो जाएंगे. सो एक्सेलरेशन चेंबर इज जस्ट लाइक अ सेपरेटिंग चेंबर के तौर पर भी ये काम जो है वो कर देता है. सो इंटरमीडिएट ये मेरे पास आयनाइजेशन चेंबर है, आयंस बन देते 1000 वोल्ट्स आप जो है हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं, और ये मेरे पास 3 स्लेट्स से हम पास कर देते हैं. ये यहाँ पे जो वोल्टेज है 10,000 होगी, यहाँ पे इंटरमीडिएट लाइक 5,000 और यहाँ पे 0 वोल्ट्स जो है. तो इसी तरह वोल्टेज सब अप्लाई करने के बाद जो है डिफरेंट स्लेट्स से इनको जो है जो मेरे पास मॉलिक्यूलर कैटायंस है उनको सेपरेट आउट किया कर सकते. जी बिल्कुल यही बता रहे हैं कि द पॉजिटिव आयंस आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव आयनाइजेशन चेंबर and pass through 3 slits with voltage in the decreasing order. बिल्कुल ये 3 स्लेट्स हैं, ये 3 स्लेट्स हमें नजर आ रही है, एक दूसरा और तीसरा 3 स्लेट्स है, और तीनों स्लेट्स की जो वोल्टेज है वो क्या है, डिफरेंट है. So the positive ions are repelled away from the positive ionization chamber. तो जाहिर है पॉजिटिव कैटायंस के ऊपर भी पॉजिटिव मतलब जो मेरे पास फ्रेगमेंट आयंस बने उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, और जो मेरे पास मीडिया प्रोड्यूस किए हुए हैं वहां भी पॉजिटिव चार्ज, तो सिमिलर चार्जेस रिपील ईच अदर. सो एज अ रिजल्ट पॉजिटिव कैटायन जो है वो क्या होगी, रिपेल्ड होगी वहां से, और वहां से सीधा एक किसमें एक स्ट्रेट लाइन में जो है पार्टिकल्स आगे ट्रेवल करेंगे. सो द आयनाइजेशन चेंबर एंड पास थ्रू 3 स्लेट्स विद voltage in the decreasing order. The middle slit carries some intermediate voltage and the final slit will carry a 0 volts of voltage जो कि उसमें sketch में नजर आ रहा है. All the ions are accelerated into a finely focused beam. तो जितने सारे मुख्तलिफ ions जिनकी molecular mass different होती है
वो जो है वो एक्सेलरेट होगी और आगे एक फाइन फोकस बीम हमें देगा। इसके बाद है डिफ्लेक्शन चेंबर। डिफ्लेक्शन चेंबर में जो मेरे पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस जो एक्सेलरेटिंग चेंबर से आते हैं, सो एक्सेलरेशन चेंबर क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को इन्हीं आयंस पर इनको हम करते हैं, पास करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ये बिल्कुल हमें नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि मेन स्केच में भी नजर आ रहा था, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ था। तो या मेरे पास मिक्स्ड स्ट्री आयन स्ट्रीम आएगी। मिक्स्ड आयन स्ट्रीम मीन के masses having different cations having different molecular mass. So different molecular cations जो है masses cations जो है यहाँ होगी मिक्स फॉर्म में, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से पास कर देते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो इलेक्ट्रोमैग्नेट इन आयंस को जो है सेपरेट आउट करते हैं। सो डिफ्लेक्शन चेंबर में क्या होगा, मिक्स्ड आयन स्ट्रीम की सेपरेशन होती है। ठीक है, सिंपल इज दैट। सो ये आपको ये ब्लू, ग्रीन और रेड कलर ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास मिक्स्ड आयंस आ रहे हैं, ब्लू ग्रीन रेड मिक्स्ड आ रहे हैं। लेकिन जो ही ये सेपरेटिंग चेंबर की तरफ आ जाते हैं या डिफ्लेक्शन चेंबर की तरफ आ जाते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस मैग्नेट के थ्रू जो है क्या होगा, सम ऑफ द आयंस विल डिफ्लेक्ट हियर, सम ऑफ द आयंस विल डिफ्लेक्ट इन फॉरवर्ड एंड सम ऑफ द आयंस विल डिफ्लेक्ट हियर। सो इनकी डिफ्लेक्शन होती है और ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करते हैं ऑन द मास टू चार्ज रेशियो। तो ये मेरे पास आयन स्ट्रीम ए यानी मॉलिक्यूलर कैटायन ए, ये दूसरा फ्रेगमेंट आयन और ये तीसरा फ्रेगमेंट आयन। सो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स था इनकी हमने फ्रेगमेंटेशन की, आयोनाइजेशन की और इन आयंस को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू डिफ्लेक्शन के थ्रू जो है सेपरेट आउट किया। तो मेरा एक आयंस जो है आयन स्ट्रीम ए जो है यहाँ गिर जाते हैं, आयन स्ट्रीम बी यहाँ गिर जाएंगे, आयन स्ट्रीम सी यहाँ गिर जाएंगे। और आयन स्ट्रीम ए, बी और सी तीनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, अलग अलग हो, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो एंड मॉलिक्यूलर मास इन आयंस की क्या होती है, सेपरेशन होती है। So the ions are then deflected by the magnetic field according to their mass to charge ratio. The lighter they are, the more they are deflected. जाहिर है, जैसा कि पहले मैंने कहा था कि जो stones heavy होते हैं इनको आप एक force provide कर देते तो वो करीब गिर जाएंगे, लेकिन जो stone lighter होते हैं और आप same amount of force provide करके आगे की तरफ इसको फेंकोगे तो वो क्या होगा, वो ज्यादा distance cover करके जाएगी। सो इसी तरह जो है क्या है, द लाइटर दे आर द मोर दे आर डिफ्लेक्टेड। तो जो आयंस लाइटर होते हैं इनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जो आयंस हेवियर होते हैं इनकी डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगी, वो डिफ्लेक्शन कम डिफ्लेक्ट करेगा। The amount of deflection also depends on the number of the positive charge on the ions. बिल्कुल डिफ्लेक्शन इस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। The more the ion is charged, एक आयन जो ज्यादा चार्ज हुआ है मीन के +2 है या +3 है, the more it gets deflected, इनकी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। So डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है on the mass of the mass of the ions and also depend upon the charged of the ions। ठीक है, the more the number of positive charges के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। So the lighter they are, the more they are deflected, and the more the ions is charged, the more it gets deflected। So on these two bases जो है, इन दो बुनियादों के ऊपर हम डिफ्लेक्शन या सेपरेशन ऑफ आयंस करते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन चेंबर। डिटेक्शन चेंबर्स में आयंस की सेपरेशन के बाद हर जो आयंस है सेपरेट करने के बाद डिटेक्शन चेंबर से पास करते हैं। जाहिर है जो आयंस लाइटर होते हैं वो पहले डिटेक्शन चेंबर की तरफ जाएगी और सबसे पहले डिटेक्ट होगी। जो इंटरमीडिएट मास रखते हैं फिर उनकी डिटेक्शन, फिर वो डिटेक्शन चेंबर में जाके इनकी डिटेक्शन होगी एट द एंड। जो हेवीएस्ट होते हैं इनकी डिटेक्शन एट द एंड होगी। सो जो ही जो मास टू चार्ज रेशियो हम आयंस की सेपरेशन या डिफ्लेक्शन कर देते हैं इनके ऊपर डिटेक्शन चेंबर से पास करते हैं। डिटेक्शन चेंबर्स में आयन स्ट्रीम ए, आयन स्ट्रीम बी, आयन स्ट्रीम सी को जो है डिटेक्ट किया जाता है एंड द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। साथ साथ डिटेक्शन चेंबर में ना सिर्फ मास
टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे इनको डिटेक्ट किया जाता है, इनके मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया जाता है, बल्कि साथ इनकी नेचुरल अबांडेंस के बारे में भी हम बता सकते हैं। ठीक है जी, ये कहते हैं the beam of ions passing through the machine is detected electrically when an ion hits the metal box. Its charge is neutralized by an electron jumping from the metal onto the ions, और वो न्यूट्रलाइज आयंस को बिन वैक्यूम पंप के थ्रू आगे निकाल देते हैं. So that leaves a space amongst the electron in the metal and the electrons in the wire shuffle along the file. A flow of electrons in the wire is detected. A flow of electrons in the wire is detected as electric current, which can be amplified and recorded. The more ions arriving, the greater the current. जाहिर है जो जिन आयंस की तादाद ज्यादा होती है, नंबर ऑफ एक लेट सपोज एक स्पेसिफिक आयन हैविंग स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशो, लेकिन इनकी नंबर ज्यादा है, तो नंबर ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, which can be amplified and recorded. तो इनको एम्पलीफाइड करके रिकॉर्ड करेगा, और द मोर आयंस अराइविंग द ग्रेटर द करंट, तो ज्यादा आयन से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और ये मेरे पास इसका जो पीक है वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी. सो जी बिल्कुल, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन. दीज आर द फ्यू स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन के. सबसे पहले एक एक है एक पोर्शन है इंस्ट्रूमेंटेशन में जहाँ पे हम एक सैंपल पुट करते हैं, सैंपल चेंबर. इसके बाद जो है एक्सेलरेटिंग चेंबर से फ्रेगमेंटेशन चेंबर से हम जाते हैं डिफ्लेक्शन चेंबर्स की तरफ, डिफ्लेक्शन चेंबर से फिर हम डिटेक्टर्स की तरफ, और डिटेक्टर से आगे रिकॉर्डर में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक मास स्पेक्ट्रम बन जाती है, और उस मास स्पेक्ट्रम को फिर हम अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर देते हैं. सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन. एंड इस मास स्पेक्ट्रम को फिर किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, आई विल डिस्कस द मास स्पेक्ट्रम इन डिटेल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. लेकिन सबसे पहले दिस वाज द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इंशाल्लाह इन आफ्टर studying the principle of mass spectrophotometers and other things, inshallah I would also like to describe what kinds of information we can take out from the mass spectrum. Now this is the last slide of today's lectures. Applications of the mass spectrometry. किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? For it is used, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, it is used for the determination of the molecular weight, used for the determination of recognition of the molecular ions, and this can also be utilized for determining the molecular structures and molecular formula. So ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से या मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम ये तीन चीजें जो है डिटेक्ट करते हैं. डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमिन for the determination of molecular weights of organic compounds or by measurement of mass to charge ratio. कैसे हम molecular mass find out करते हैं? On the basis of mass to charge या m by z या m by e values, we can determine the molecular weight of the substance with a very high accuracy so as to deduce their molecular formula. And mass spectrometry can also utilize for the recognitions or determination of the molecular ions. Identification of the molecular fragments which are formed by the fragmentation of the original molecules during ionization, the reduced structure of the molecule. Recognition of molecular ions. Molecular ions से मुराद क्या है? जब आप हमारा जो ओरिजिनल सैंपल होते हैं उसको हम वेपोराइज कर देते हैं, फिर इनकी फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, मतलब मुख्तलिफ इसको टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं. इन फ्रेगमेंट्स आयंस को फ्रेगमेंट कैटायंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन डिफरेंट कैटायंस की फिर हम क्या करते हैं, डिटेक्शन सेपरेशन करते हैं, फिर डिटेक्शन कर देते हैं. सो इसलिए कहते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर द रिकग्निशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस. तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स होता है इनको डिफरेंट आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं, और इन मॉलिक्यूलर आयंस को डिटेक्टर के थ्रू जो है डिटेक्ट किया जाता है. And it can also be utilized for the determination of the molecular structures and molecular formula के लिए भी इस्तेमाल होती है. So the above recognition gives us information. ये जो molecular weight है या molecular ions है, इन तमाम को मिला के इससे हम find out कर सकते हैं
about the structure of the organic compound, या not only ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो फिर मॉलिक्यूल्स को इन फ्रेगमेंट आयंस को मिला के फिर हम बता सकते हैं कि मेरे पास कंपाउंड कौन सा है, और इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड। वी कीप इन माइंड कि हम स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं डिटरमिन कर सकते मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगी, फिर वी विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट द डिफरेंट आइसोमर्स। हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दिस में भी दिस आर दैट, सो डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं। सो डिफरेंट आइसोमर्स को फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किस सब्सटेंस के साथ, किस आइसोमर्स के साथ रिलेट करता है, इसके लिए फिर हम आगे एनएमआर की तरफ जाते हैं, और एनएमआर फिर क्या करते हैं, इन डिफरेंट आइसोमर्स जो कंफ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इन आइसोमर्स की फिर आगे आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, और हमें स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स लग पता जाता है। सो आज के लिए इतना काफी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो है दैट विल बी डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल आज के लिए इतना जो है दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सो I would like to stop. G, please, any question any one of you have? Oh, Mama, any question? No, This, sir. okay. Aman, No, sir. okay. Abid Jalal, अबे जलाल आप बाहर घूम रहे हो, कहाँ हो यार? सिग्नल प्रॉब्लम है आई थिंक सो आपको। जी जैनब, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, और ये कौन है गैलेक्सी एयर10, ये कौन है? ये सर मेरे ख्याल में जी कौन हो सकता है ये? मेरे ख्याल से उनको सिग्नल प्रॉब्लम भी है। हलीमा है शायद सर। अच्छा, हलीमा। और आबिद जलाल, यू हैव सिग्नल प्रॉब्लम आई थिंक सो। आप मुझे नहीं सुन रहे? ठीक ठीक है। इस तरह है ना कि ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इस तरीके से समझना, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ।